Next question, number of particles is given by, तो आपको इक्वेशन दिया है, this equation is equation of n and n is number of particles which is given by minus d n2 minus n1 upon x2 minus x1 crossing a unit area perpendicular to x-axis in unit time. This is important. ये जो n आपको दिया है, this is nothing but number of particles crossing a unit area perpendicular to x-axis in unit time. मतलब basically the idea here is आपके पास एक unit area है, you have a area through which these particles are crossing and perpendicular to x-axis. So particles are crossing this unit area perpendicular to x-axis. Area is kept perpendicular to x-axis. So dimensions निकालते वक्त you need to be very careful. एक एक word important है, एक word important है here. You have number of particles crossing a unit area. Crossing a unit area मतलब ये जो n के dimensions आएंगे, इस n के dimensions में नीचे area आएगा. आप लिखते हो पर यूनिट एरिया मतलब क्रॉसिंग यूनिट एरिया, मतलब एरिया डिनोमिनेटर में आएगा. आगे बोला है इन यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट टाइम मतलब टाइम आएगा नीचे. तो ये जो n दिया है इसके डायमेंशंस आपको निकालते आने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द आइडिया. सो देन यू हैव दिस n एज a के डायमेंशंस, एरिया के डायमेंशंस l रेज टू 2, l रेज टू 2 और t रेज टू 1, और ये जब ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम l minus 2 t minus 1. दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम. तो n के डायमेंशंस आपको मिल गए. देन आगे आपको बोला है वेयर n1 एंड n2. तो इस फॉर्मूला में n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. So this n1 and n2 are number of particles per unit volume. Number upon volume मतलब n1 के dimensions and n2 के dimensions are 1 upon volume के dimensions and volume के dimensions are l raised to 3. तो ये ऊपर जाएगा तो it will become l raised to minus 3. तो आपको n1 n2 के dimensions first of all you need to understand how to find. Then आगे बोला है for the value of x mean to x2 and x1. this is wrongly framed, but ठीक है. उनके बोलने का मतलब ये है कि ये जो n1 और n2 है these are number of particles. अभी n1 are the number of particles per unit volume at x2, at distance x2. n1 n2 are number of particles per unit volume at distance x1. x1 and x2 मतलब distance. तो distance का डायमेंशंस तो पता होगा. व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस? l रेज टू 1. आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आगे आपको बोला है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ d. यहाँ पे जो d दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन कांस्टेंट. इसके डायमेंशंस फाइंड करो. क्वेश्चन इज सिंपल. आपको कॉन्सेप्ट पता हो नहीं पता हो डजंट मैटर, क्योंकि हमको जरूरत नहीं है यहाँ पे. यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू फाइंड आउट डायमेंशंस. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन n is number of particles crossing through a area in unit time. मतलब n के डायमेंशन जो आएंगे 1 upon area into time. एरिया के डायमेंशंस l raised to 2, टाइम के डायमेंशंस t raised to 1. when this go up you will have l minus 2 t minus 1. आगे आपको बोला है n1 and n2 are number of particles per unit volume. number of particles per unit volume मतलब 1 upon volume. 1 upon volume मतलब 1 by l cube, और ये ऊपर जाएगा तो l raised to minus 3. आगे ये n1 और n2 are number of particles per unit volume at distances x2 and x1. why they are saying like this is because जब आप एक कंडक्टर लेते हो या any material if you take, तो it is possible कि कहीं पे for example at distance x2 या x1 whatever it is, हो सकता है इस डिस्टेंस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम आर डिफरेंट और दूसरी जगह पे एट सम अदर पॉइंट दे आर डिफरेंट.
So this x1 and x2 are distances. So they are telling you, in short, they are telling you यहाँ पे N2 what? What is N2? Number of particles per unit volume. So at distance x1 you have N2 and at distance x2 you have N1. So x1 and x2 are distances. This is what you need to first of all identify. तो एक बार ये मिल गया तो you have everything that you require. आपको diffusion constant के dimension निकालने हैं. तो from this formula ये जो D है इसका पहले फॉर्मूला बनाओ. तो keep D on one side, यहाँ पे था N, इसको शिफ्ट कर दिया, ये आ गया x2 minus x1, राइट, करेक्ट. और ये n2 minus n1 ये आएगा नीचे n2 minus n1 विद अ नेगेटिव साइन. तो दिस इज व्हाट यू हैव. तो आपको मिल गया डिफ्यूजन कांस्टेंट का फॉर्मूला. अब डिफ्यूजन कांस्टेंट का फॉर्मूला, if you have, you want to find out dimensions of diffusion constant, this is equal to, dimensions of find करते हो तो negative sign को छोड़ दो because negative sign doesn't contribute in dimensions. So dimensions of n, dimensions of x2 minus x1 upon dimensions of n2 minus n1. n इसके dimensions find किए थे क्या? l minus 2 t minus 1, l minus 2 t minus 1. x का distance, distance minus distance is distance, तो ये l raised to 1. n2 l raised to minus 3. तो ये नंबर डेंसिटी माइनस नंबर डेंसिटी इज अगेन नंबर डेंसिटी. तो n2 माइनस n1 के डायमेंशन वापस से आएंगे l raised to minus 3. तो दिस इज इक्वल टू, ये -2 ये +1, -1 ये ऊपर आएगा +3, -1 + 3 +2. So you have L2 T minus 1. This is the formula for diffusion constant, dimensional formula, L2 T minus 1, option number D. So this is how you are supposed to solve. Next question. The surface tension of a liquid is 79 per centimeter. In MKS system of units it is. तो आपके पास सरफेस टेंशन किसी बुक में कैपिटल T है, किसी बुक में S है, doesn't matter. It is 79 per centimeter and they are telling you to convert this into MKS system of units. There are two ways. एक dimension से, which we will not do. दूसरा directly by knowing conversion factor. तो आपको पता होना चाहिए MKS system में force is in Newton and distance is in meter. और आपको पता होना चाहिए 1 dyne is how many newtons? 10 power minus 5. तो 1 dyne is 10 power minus 5 newton. 1 centimeter is 10 power minus 2 meter. ये ऊपर जाएगा तो 70 into 10 power minus 3, क्योंकि minus 5 plus 2 is minus 3, मतलब ये आएगा 7 into 10 power minus 2 newton per meter. Option number B. Simple question. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया. द फर्स्ट सेट हैड 16 क्वेश्चन. लेट अस मूव टुवर्ड सेट नंबर 2. सेट नंबर 2 में द लेवल विल बी लिटिल बिट हायर बट वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन यूजिंग ट्रिक्स. तो कल का जो लेक्चर था हमने सारे ऑल फुल फ्लेश्ड मेथड्स देखे थे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, राइट. बड़े बड़े सॉल्यूशन थे. इट वाज जस्ट टू टेल यू, जस्ट टू गिव यू इनिशियल स्टार्ट, थोड़ा सा बेसिक से. बट नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी यूजिंग सम ट्रिक्स हियर एंड दिस सेट विल आल्सो कंटेन सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस जेईई मेन एग्जाम. थर्ड सेट विल हैव फ्रॉम नीट एग्जाम. So the length of a cylinder is measured with a meter rod having least count 0.1 centimeter. तो आपको पता है जितना least count होता है उतना ही एयर होता है. तो यू आर मेजरिंग लेंथ ऑफ अ सिलेंडर और उस इंस्ट्रूमेंट का जो आप यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर. मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ विल बी 0.1 सेंटीमीटर. इट्स डायमीटर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर हैविंग लीस्ट काउंट 0.01. मतलब डायमीटर के मेजरमेंट में जो एरर होगा दैट विल बी 0.01 सेंटीमीटर.
given that length is 5 centimeter, so length is 5 centimeter and radius is 2 centimeter, radius is 2, याद रखना यहाँ पे दिया है वैल्यू रेडियस का और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर बोला है, तो रेडियस वैल्यू इज 2 centimeter, right? Then percentage error in the calculated value of the volume is, first of all you should know volume of a cylinder. अगर आपके पास एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम इट इज पाई आर स्क्वायर एल, एच या एल एक ही बात है, इज द सेम थिंग. सो व्हाट यू हैव इज दिस, you should know area of cross section of cylinder is circle. तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा दिस इज सर्कल एंड वॉल्यूम अगर आपको मेजर करना है तो आप एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हो एंड देन वॉल्यूम इज एरिया इनटू एल, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एल. रेडियस की वैल्यू दी है यस, बट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डायामीटर. तो आपको पता होना चाहिए जितना एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डायामीटर होगा उतना ही एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस होगा. अदरवाइज व्हाट यू विल डू इज, हाँ ये डायामीटर है इसका हाफ कर दो, ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? सिंपल, व्हेन यू मेजर डायामीटर और रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हो? वर्नियर कैलिपर. एरर कहां से आता है? मेजरिंग डिवाइस से आता है. तो आपने मेजरिंग डिवाइस चेंज किया क्या? नहीं. तो फिर आप वहां से रेडियस मेजर करो या फिर आप डायामीटर मेजर करो, एरर विल बी द सेम बिकॉज एरर कम्स फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर यूजिंग. आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया तो एरर चेंज होगा. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देते हैं. डायामीटर में एरर और वैल्यू रेडियस की, तो फिर सम स्टूडेंट्स दे डू व्हाट, वो डेल्टा आर एरर इन रेडियस इसका हाफ कर देते हैं. तो ऐसा नहीं करना है. रिमेंबर एरर कम्स फ्रॉम मेजरिंग डिवाइस. गुड, इज दिस क्लियर? तो इजी क्वेश्चन है. यू नो डेल्टा वी बाय वी और परसेंटेज एरर बोला है यस, मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू पाई. तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एरर होता नहीं है. तो यू विल हैव दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल होल इनटू 100. राइट? आपको चाहिए तो आप दोनों के साथ 100 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. यहां पे एक 100 लिख दो. ओके, दैट इज ऑल्सो फाइन. इट्स द सेम थिंग. अब डेल्टा आर कितना था? 0.01. 0.01 और अपॉन आर कितना है? 2 और दिस इज 100. वेरी गुड. कैंसल 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 एंड कैंसल, क्योंकि 10 पावर -2 और 100 1 हो गया. 2 और 2 कैंसल होके 1 हो गया. तो ये 1 है प्लस डेल्टा एल. डेल्टा एल था 0.1 और लेंथ आपको दिया है 5 और यहाँ पे है 100. 1 जा 20, 20 into 0.1 is 2. So 1 plus 2 is 3. So this is total error, percentage error in the volume will be 3%. Option number C. Next question. EM and G denote energy, mass, angular momentum. Remember this, L is not length, L is angular momentum, क्योंकि most of the times in hurry L हम लिख देते हैं L raised to 1 length. That is not length. उन्होंने बोला है L is angular momentum and capital G gravitational constant. Then the dimensions of E L square upon m raised to 5 G square R. So dimensions of this quantity EL square upon m raised to 5 G square, ये एंगल आएगा कि लेंथ आएगा कि मास आएगा कि टाइम आएगा? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल. आपको पता होना चाहिए E मतलब एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशंस m1 L2 T-2, देन स्मॉल m इज मास. तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. मास इज मास, m raised to 1.
L was angular momentum और angular momentum का फॉर्मूला पता होना चाहिए mvr। तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो मास के डायमेंशंस, वेलोसिटी मतलब L1 t-1 और r इज अगेन लेंथ, तो ये आ जाएगा आपके पास m1 L2 t-1। तो these are the dimensions of angular momentum। angular momentum के dimensions you have, and then यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इसके डायमेंशन हमने कल भी फाइंड किए थे, m -1 L3 t-2। okay, so I am trusting you that you are whatever you are saying is correct। m1 L3 m-1 L3 t-2। okay, good। then आपको बोला है E L स्क्वेयर अपॉन m⁵ g² के डायमेंशंस निकालने हैं। तो डू वन थिंग हियर, यहीं पे वंस यू नो डायमेंशंस, e⁻1 इज e⁻1 L स्क्वेयर। L मतलब एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर करता हूं तो यहाँ पे इन सारे क्वांटिटीज का स्क्वायर हो जाएगा, तो यू विल हैव m⁻2 L⁻4 t⁻⁻2। सिमिलरली m⁵ मतलब यहां से आपको mass⁵ मिलेगा, so you will have m⁵ as capital M⁵। then g² इसका स्क्वायर कर लो, g², so this will be m-2 L6 t-4। अब ये सारे के सारे डायमेंशंस आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे। एनर्जी इज जस्ट m1 L2 t-2 L स्क्वायर m2 L4 t-2 अपॉन m⁵ is just m⁵, correct। then g² is m-2 L6 t-4। now m नीचे 5 - 2 is 3, ऊपर 1 और 2 3, कैंसल पूरा का पूरा गया। ऊपर L2 और L4 L6, नीचे L6 गया, ऊपर t-2 -2, नीचे t-4, ये भी गया, तो नथिंग इज लेफ्ट, एंगल। when you have no dimensions it is angle। method number 1। of course there is method number 2। so this is dimensionless, which means this is nothing but angle। तो आंसर तो आ गया, but you should also know how to solve via alternate method, whichever you find is quick and easy। E L square by m⁵ g²। यूनिट्स, एनर्जी के यूनिट्स याद नहीं होंगे आप, मुझे पता है, यू कॉल इट एज जूल। मैं जूल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट किलोग्राम मीटर सेकेंड। तो अगर आपको एनर्जी के यूनिट्स याद नहीं, सिंपल, डू यू रिमेंबर एनी इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एक, हाफ mv², उसमें m है मास आता है किलोग्राम में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर होगा ना mv², राइट। L mvr, m मतलब किलोग्राम, v मतलब मीटर पर सेकेंड, वापिस से और एक मीटर, क्योंकि mvr, तो ये आ जाएगा स्क्वायर अपॉन m⁵ मतलब किलोग्राम⁵5। जी, अगर आपको याद होगा कल मैंने बताया था g m1 m2 by r², तो यहां से आपको g मिल जाएगा fr² अपॉन m1 इंटू m2। f इस मास इंटू एक्सेलरेशन, ये डिस्टेंस स्क्वायर m1 इंटू m2। m मतलब मास, एक मास तो यहीं पे गया। then put this over here, what you will have is acceleration
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयर समथिंग रॉन्ग आई नो, इसका स्क्वायर है। ओके हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये कैंसिल नहीं होगा, लेकिन अभी ध्यान है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, नहीं तो यू विल नॉट गेट एंगल। गुड, देन दिस इज ऑल्सो रेज टू 2। यस, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस इज मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, नीचे किलोग्राम, मास दिस इज किलोग्राम, ओके दिस इज किलोग्राम, और इसका भी स्क्वायर। तो व्हाट यू विल हैव इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर मीटर रेज टू 4 अपॉन सेकेंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम रेज टू 5 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड रेज टू 4, और ये वापस से मीटर रेज टू 4 अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, राइट। यू सी, ये किलोग्राम स्क्वायर, ये रेज टू 5, कितना बचा 3, और ऊपर 3, कैंसल 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 एंड कैंसल कैंसल एंड कैंसल, ये 4 और ये भी 4, सब गए, नथिंग इज लेफ्ट, यूनिटलेस मतलब एंगल। तो दिस इज मेथड नंबर 2। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dimensions of A and B in the equation, there is an equation that is given to you, P, which is pressure, if I'm not wrong, pressure P is A minus T square, A minus T square upon BX square, where P is pressure, X is distance, D is time। आपको पूछा है A upon B के dimensions, तो सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि अगर आप a माइनस टी स्क्वायर लिख रहे हो और उसमें t टाइम है, तो a भी टाइम का स्क्वायर होगा। a माइनस टी स्क्वायर, एज आई टोल्ड यू, आप किसी भी दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइम स्क्वायर है, तो a के डायमेंशंस भी टाइम स्क्वायर के डायमेंशंस होंगे। Otherwise, you cannot add or subtract. You can multiply, divide, yes, but you cannot add or subtract. नीचे bx square, right? अब ये प्रेशर है, of course, ये टाइम है, और नीचे bx square है, तो यहां से आपको मिल जाएगा b इक्वल टू a minus t square upon pressure into x square। Then you should know dimensions of B will be dimensions of A minus T square, और A minus T square के dimensions मतलब T square। प्रेशर के डायमेंशंस फोर्स अपॉन एरिया हमने कल भी फाइंड किया था, फोर्स इज m1 l1 t minus 2 और अपॉन एरिया इज l2, ये l2 ऊपर जाएगा तो m1 l minus 1 t minus 2। ये आगे आपके पास प्रेशर के डायमेंशंस, और ये x है और x डिस्टेंस है, मतलब ये l स्क्वायर है। सो राइट, और ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया आपको a माइनस टी स्क्वायर इज नथिंग बट टी स्क्वायर। तो अब m ऊपर जाएगा m माइनस 1, नीचे है l प्लस 1, ऊपर जाके माइनस 1, तो l माइनस 1, और ऊपर t स्क्वायर है, नीचे t माइनस 2 है, ऊपर जाके t 4, तो t प्लस 4, m माइनस 1 l माइनस 1 एंड t 4, ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा, x का स्क्वायर। ओके, वेट अ मिनट, सो वेयर डिड वी गो रॉन्ग? bx, गुड, तो bx, दिस इज x, दिस इज x, यहाँ पे x मतलब लेंथ, तो यहाँ पे L1, ये L1 मतलब नीचे कैंसिल, तो ओनली चेंज विल बी, दिस विल बी m माइनस 1 एंड अगेन L तो गया, t प्लस 4 की माइनस 4 प्लस 4 है क्या? ऐसा भी नहीं है, तो a अपॉन b चाहिए। वेरी गुड, बट दिस इज करेक्ट, इज दिस करेक्ट?
अरे ये करेक्ट है कि नहीं बताओ बी फटाफट। गुड। अभी अगर ये करेक्ट है तो a अपॉन बी के डायमेंशन चाहिए आपको। a के डायमेंशन है, b के डायमेंशन है, तो a अपॉन b के डायमेंशन निकाल लो। a अपॉन b के डायमेंशन, a के डायमेंशन t स्क्वायर, b के डायमेंशन m माइनस 1 t प्लस 4 m1, हाउ मच t माइनस 2। तो है क्या अब ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर ए -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the density measurement of a cube, the mass and edge length are measured as, तो mass is 10.00 मतलब, and you know plus minus 0.10 मतलब एरर भी दिया है आपको, and 0.10 plus minus 0.01 मीटर। तो density measurement of cube, first of all you should know density is mass upon volume, then you should know volume of a cube is length cube, so this is mass upon length cube। आपको पूछा है what is the error in the measurement of density, error, percentage error नहीं, only error, then you should know this, it is simple। जब आप error measurement करोगे तो delta rho by rho is mass मतलब delta m by m plus l cube, डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो तो पॉजिटिव 3 होता है, डेल्टा एल बाय एल। तो यू नो व्हाट इज डेल्टा एम? डेल्टा एम इज 0.01 एंड एम इज 10 प्लस 3, डेल्टा एल 0.01 अपॉन दिस इज 0.1, सिंपल। यू सी ये 10 पावर माइनस 2 और नीचे 10, नीचे का 10 ऊपर जाएगा तो 10 पावर माइनस 1, 10 पावर माइनस 2 और 10 पावर माइनस 1 इज 10 पावर माइनस 3, तो ये आ गया आपका 10 पावर माइनस 3 प्लस ऊपर 0.01 मतलब 10 पावर माइनस 2, नीचे 10 पावर माइनस 1, ऊपर आएगा तो वेट क्या आएगा? 10 पावर माइनस 2 और ये ऊपर आएगा तो 10 पावर प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 मतलब 0.1, 0.1 इंटू 3 इज 0.3, ये आ गया 0.3। अब आगे क्या करोगे? What is wrong? Tell me quick. Delta m, okay, 10 और डेल्टा m is 0.1, oh 0.1, this is 0.1 मतलब यहाँ पे 0.1, इसका मतलब ये टोटल होगा 10 पावर माइनस 2, इसका मतलब आंसर आएगा 0.31। कैसे? क्योंकि 10 पावर माइनस 2 इज 0.01 and 0.3 is 0.3, what is 0.3 plus 0.01 is 0.31, option number C। This question is from JEE Main 2019, simple question। Next question, it is again simple, oh good। So if momentum p, area a and time t are taken to be fundamental quantities, then the dimension for energy is। तो हमने कल के लेक्चर में, आपको याद होगा, मोमेंटम आप फंडामेंटल ले रहे हो, एरिया और टाइम भी फंडामेंटल ले रहे हो, तो एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ पी, ए एंड टी रिप्रेजेंट करना है। तो व्हाट यू यूज्ड टू डू इज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p raised to x, a raised to y, t raised to z। एंड एज आई टोल्ड यू कि आज हम ये मेथड नहीं यूज करेंगे, उससे भी होगा बट देन टाइम कंज्यूमिंग मेथड। क्या फाइंड करना है? एनर्जी। तो वी विल नाउ यूज योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नॉट माइंड, योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मूलाज। एंड हाउ मच फॉर्मूलाज डू यू रिमेंबर? So tell me what is the formula for energy? Half mv square, wait,
दैट इज ओके, हाफ mv स्क्वायर। हमें मोमेंटम, एरिया और टाइम लाना है, तो हाउ विल यू ब्रिंग मोमेंटम हियर? यू आर राइट, इट इज हाफ mv स्क्वायर, लेकिन फिर मोमेंटम कैसे एडजस्ट करोगे? हो सकता है, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट एनर्जी इज वर्क, and work done is force into distance. So force into distance x. According to Newton's second law of motion, force is ma. लेकिन ma कैसे आया था? नहीं, नो, you don't remember basics. ये सबसे बड़ी गलती है। ये कहां से आता है ये पता होना चाहिए। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिर आप बोलते हो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। फिर आप बोलते हो मास तो कांस्टेंट है, तो dv बाय dt ma। दिस इज हाउ यू डिराइव। हमें इसकी जरूरत नहीं है। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम मतलब मोमेंटम अपॉन टाइम डायमेंशनली, राइट? तो फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ इज नथिंग बट मोमेंटम अपॉन टाइम। तो कम से कम मोमेंटम p तो आ गया, राइट? गुड। देन यू हैव मोमेंटम, यू हैव टाइम एंड यू हैव डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम चाहिए था, टाइम आ गया, मोमेंटम चाहिए था, मोमेंटम आ गया, लेकिन डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? एरिया। तो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम व्हिच इज इजीली सॉल्वेबल। x मतलब लेंथ, एरिया इज लेंथ स्क्वायर, but area is equal to x square। लेंथ स्क्वायर होता है ना? हाँ, तो फिर x equal to under root of a, you can take square root on both sides। तो root a equal to x, तो ये एनर्जी के फॉर्मूला में पुट x की जगह पे रूट a, तो p रेज टू 1, t इज टाइम, ऊपर आया तो t रेज टू -1 एंड a रेज टू हाफ। तो p1 t -1 and a raised to half c is not correctly printed but it is c। तो ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। So this was from JEE Main 2020. Next question is also from JEE Main 2020. A quantity x is given by IFV square upon WL raised to 4. So quantity x is given by IFV square upon WL raised to 4. In terms of moment of inertia, मतलब I is moment of inertia and you should know. जिनको नहीं पता, moment of inertia is distance into, नहीं, distance square into mass, mr square. Especially those who are in 11th, you will come across this quantity, moment of inertia. Basically, I will give you just rough introduction कि ये होता क्या है. So if you remember Newton's first law of motion, every body will stay at rest or in uniform motion unless an external unbalanced force is applied to it. तो क्वेश्चन ये है कि किसने रोका स्टेट चेंज करने से? अगर स्टेट उसके खुद के मास ने, उसको बोलते हो इनर्शिया। सो अपोजिशन टू चेंज इन state in linear motion is measured by mass and that mass is called as inertia. Similarly, when a body is rotating, rotation कब होगा? When you apply torque. So a body also opposes change in the state of rotational motion. मतलब अगर एक बॉडी मान लो 10 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से रोटेट हो रहा है, रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर मोशन है, लीनियर मोशन में मीटर पर सेकंड होता है। अब उसका स्पीड अपने आप चेंज नहीं होगा, राइट? किसने रोका? तो एक क्वांटिटी है जिसको आप बोलते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया। जैसे लीनियर इनर्शिया होता है मास, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो I इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले you should know I is mr square। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो I is mr square with some constant, हम बाद में देखेंगे वो, वहां पे कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं,
1/2, 2/5, 2/3. We'll see that later. F is force, V is velocity, W is work and L is length. The dimensional formula for X is same as that of. तो यहाँ पे भी 2-3 मेथड है सॉल्व करने की. एक तो डायमेंशनली, विच आई डोंट लाइक क्योंकि बहुत लंबा है, तो हम नहीं करेंगे. यूनिट वाइज ओके, यूनिट इज गुड क्योंकि I is mr square which is kilogram meter square. Force is mass into acceleration. Force is ma, kilogram meter per second square. Kilogram meter per second square. V is meter per second, तो meter square per second square. डिनोमिनेटर में है वर्क, वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज mv स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. लेंथ, एल लेंथ है ना, लेंथ रेज टू 4 मतलब m रेज टू 4. अब देखो क्या क्या बचता है, क्या क्या कैंसिल होता है. ये और ये गया, राइट. मीटर स्क्वायर गया, केजी गया. ये मीटर क्यूब है, नीचे 4 है, तो सिर्फ आपके पास अल्टीमेटली बचेगा, you will be left only with kg upon meter second square, right? So this is what you have, right? अब फिर इसमें से कौन सा, अब एक काम करो, always to start off with जो अभी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, half of you don't know what is this क्योंकि अभी तक थ्योरी पार्ट हुआ नहीं है, तो इसको बाद में देखेंगे. फोर्स कांस्टेंट, वेल बाय द वे फोर्स कांस्टेंट आपको ये पता होना चाहिए. इन सम मोशन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स. ये कांस्टेंट को बोलते हो फोर्स कांस्टेंट, व्हिच इज फोर्स अपॉन एक्स. बट फोर्स अभी आपने बताया मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज किलोग्राम, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और x इज इन मीटर, तो किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, हमारा किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर आया था, तो ये नहीं हो सकता. एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. एनर्जी mv स्क्वायर, m इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर और वॉल्यूम मीटर क्यूब. कैंसल, ओ आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऑप्शन नंबर सी डन. So what you had is option number C, energy density. So that is how you are supposed to solve. एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम का पता है, एंड डन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, we'll solve this question orally, so you need to pay attention here. You have a physical quantity z which depends on 4 observables. Observables मतलब measurable, जिसको measure कर सकते हो, a b c d. तो z is a square, b raised to 2/3, root c and d cube. The percentage error in the measurement of A, B, C, and D are 2, 1.5, 4, and 2.5 respectively. Error in Z is, याद रखना, as you know, what you know is जब error measurement की बात होगी तो percentage है, तो delta Z by Z into 100 is equal to, यहाँ power कितना है 2. मैं लिखते जा रहा हूँ, but this should be oral. It should be done orally. तो 2 into delta A by A multiplied by 100, मतलब 2 into percentage error of A. What is percentage error of A? 2, मतलब ये आ गया आपके पास 4, प्लस 2/3 percentage error of B. How much is percentage error in B? 1.5. 1.5 मतलब 3/2, 2/3 और 3/2 गया कैंसल, मतलब 1, तो ये आ गया 1. ये 2/3, ये 2/3 और ये 1.5 मतलब 3/2, कैंसल 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 कैंसल, तो 1 प्लस रूट सी मतलब c रेज टू हाफ, मतलब हाफ आगे और डेल्टा c बाय c इंटू 100. व्हाट इज 4, तो 4/2
2 और आखिरी में 3 into delta d by d into 100 मतलब परसेंटेज एरर है वो into 100 and what is that 2.5 into 3 is 7.5 ये 7 है और ये 7.5 है तो 14.5% ऑप्शन नंबर बी डन। तो क्या करना द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज एक काम करो ये जो क्वांटिटी है ना ए बी सी और डी इसके पावर लिख लो 2 2/3 हाफ एंड 3 फिर परसेंटेज एरर लिख लो कितना था 2 और फिर 1.5 4 2.5 मल्टीप्लाई 4 दिस इज 1 5 this is 2 7 this is 7.5 14.5 so this is how you can do it good done next question again this is from JEE Main 2020 I guess the density of a solid metal sphere कभी कभी hollow sphere भी बोल देते हैं hollow sphere अगर आया तो mass is only on the surface just like a plastic ball which is empty from inside is determined by measuring its mass and diameter. The maximum error in the density of sphere is x upon 100%. If the relative errors in the measuring the mass and diameter are 6% and 1.5 respectively, the value of x is. Question simple है और आपको पता होगा कि exams like JEE you have integer type answers right जिसमें ऑप्शन नहीं दिए होते तो दिस इज वन ऑफ दोस टाइप्स बहुत सिंपल है यू नो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर या फिर चलो डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज मास अपॉन वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब तो जब आप एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी निकालोगे व्हाट यू विल डू इज डेल्टा रो बाय रो इनटू 100 परसेंटेज एरर निकालोगे तब इज इक्वल टू m मतलब डेल्टा m बाय m प्लस 3 डेल्टा r बाय r सिर्फ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो डेल्टा रो बाय रो इनटू 100 है इसको क्या बोला है x अपॉन 100 सो दिस इज x अपॉन 100 ये जो आपको दिया है दिस इज x अपॉन 100 दैट्स इट मतलब इसकी वैल्यू बता दी आपको डेल्टा m बाय m व्हाट इज डेल्टा m कैसे निकालोगे दिया है 6% तो डेल्टा m बाय m into 100 is given to you already 6% and this is given to you as 1.5 तो ये आपको मिलेगा 6 plus 3 into 1.5 okay so x by 100 equal to 10.5 correct 6 और ये 4.5 10.5 तो x equal to 10.5 multiplied by 100 तो 10.5 multiplied by 100 is 1050 हो गया क्वेश्चन सॉल्व डन दैट्स इट द वैल्यू ऑफ x इज मिल गई वैल्यू ऑफ x 1050 length of a simple pendulum is 25 centimeter and time of 40 oscillation is 50 seconds. If the resolution of stopwatch is 1 second, then the accuracy in G is, in the measurement of G is. तो आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसका लेंथ आपको दिया है 25.0 सेंटीमीटर का मतलब ये होता है कि डेल्टा L की वैल्यू होगी 0.1. आगे आपको बोला है टाइम ऑफ 40 ऑसिलेशन इज 50 सेकेंड इफ द रेजोल्यूशन ऑफ स्टॉप वॉच इज 1 सेकेंड. अब ऐसे टाइप में दो क्वेश्चंस आते हैं, दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली
you know what is time period of simple pendulum? It is 2 pi root of L by G. Squaring on both sides, t square equal to 4 pi square L by G. And then you know कि आपको accuracy मतलब error percentage error in G बोला है. Accuracy मतलब percentage error in G. मतलब यहां से आपको मिलेगा, you will get this as G equal to 4 pi square L upon T square. इसका मतलब delta G by G into 100 will be equal to, so you should know this, this will be equal to delta L by L into 100 and 2 times of delta T by T into 100. So basically delta G by G multiplied by 100 equal to 4 constant, pi constant, इसमें error होता नहीं है, तो delta L by L into 100 plus 2 times of delta T by T into 100. Correct? Now the problem starts here, क्योंकि delta L तो आपने फाइंड कर लिया, that is 0.1, 10 power minus 1 मतलब, okay, so this is 10 power minus 1 and L is 25 और this is 100 plus 2 times of, यहाँ पे हो गई गड़बड़ शुरू. First of all, the resolution of stopwatch, resolution मतलब the minimum time that you can measure with the help of that clock is 1 second, मतलब delta t is 1, delta t is 1. अब मेन प्रॉब्लम है टाइम पीरियड. यहां पे ये टाइम पीरियड का इक्वेशन है. गुड. तो टाइम फॉर 40 ऑसिलेशन इज 50 सेकेंड. व्हाट इज टाइम पीरियड? हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम पीरियड? 40 ऑसिलेशन के लिए 50 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना? 50 by 40, 5 by 4 मतलब 1.25, राइट? करेक्ट. अब अगर आपने यहाँ पे 50 by 40 मतलब 1.25 लिख दिया तो आंसर गलत आएगा. क्यों गलत आएगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है द रेजोल्यूशन ऑफ स्टॉप वॉच इन मेजरिंग वन ऑसिलेशन इज 1 सेकेंड. यहां पे बोल दिया रेजोल्यूशन इज 1 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम के मेजरमेंट में एरर है 1 सेकेंड. कभी कभी क्वेश्चन में बोला होता है, यहां तक सही है, यहां तक बताया होगा लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 25 एंड टाइम फॉर 40 ऑसिलेशन इज 50 सेकेंड. आगे बोला होगा द रेजोल्यूशन ऑफ स्टॉप वॉच इन मेजरिंग वन ऑसिलेशन इज 1 सेकेंड. तो इसका मतलब एक टाइम पीरियड में एरर 1 सेकेंड है. यहां पे ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं. इसका मतलब यहाँ पे टोटल टाइम के मेजरमेंट में एरर 1 सेकेंड है. तो यहाँ पे t की जगह पे आपको टोटल टाइम ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो टोटल टाइम इज 50. देखते हैं आंसर आता है कि नहीं. आना तो चाहिए. 1 एंड 2 2 2 4 एंड दिस इज 1 एंड 4 दिस इज 0.4, दिस इज 4 and 0.4 is 4.4. Option number C. So remember this. Next question. A quantity f is given by under root of h c raised to 5 upon g, where c is speed of light, g is universal gravitational constant, h is Planck's constant. Dimensions of f is that of. Again, this question can be solved via 2 to 3 different methods. 2 या 3 मेथड से सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन. So we will try to solve this by simplest of all. So f equal to under root of h c raised to 5 upon g. Now method number 1, dimensions equate करो. Method number 2, formula h की जगह पे h e equal to h nu, h is e by nu, तो फॉर्मूला बनाओ. तीसरा SI यूनिट्स, तो आई विल प्रेफर टू गो फॉर SI यूनिट्स क्योंकि सिंपल है. तो यू शुड नो h इज एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. एनर्जी इज व्हाट? जूल, राइट? और फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन सेकेंड, मतलब ये जूल सेकेंड.
और जूल, जूल मतलब एनर्जी, मतलब एमवी स्क्वायर मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो SI यूनिट वाइज इट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। C स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, तो मीटर रेज टू 5 अपॉन सेकेंड रेज टू 5। G नीचे है ना, G नीचे, G is in the denominator and you know it is FR square upon M1 into M2। F मतलब फोर्स, फोर्स मतलब न्यूटन अपन मास इनटू एक्सेलरेशन। तो G इज हमने ऑलरेडी फाइंड किया, मैं वापस बता रहा हूं, इट इज FR स्क्वायर अपॉन M1 into M2। This is mass into acceleration, distance square m1 m2 mm cancel, this is meter per second square, this is meter square, this is kilogram, this is nothing but meter cube upon second square kilogram, right? तो ये अभी याद हो जाना चाहिए, you should fit this into your brain। mass into acceleration, okay, r square, m into m is mass square, एक मास गया, acceleration is meter per second square, this is meter square, नीचे किलोग्राम, तो मीटर क्यूब upon सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम। तो ये आएगा आपके पास, क्या आएगा, मीटर, ऊपर मीटर क्यूब मत लिख देना, ये जी डिनोमिनेटर में है, तो आई एम टेलिंग यू अगेन, नहीं तो ऐसा लिख दोगे मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर, नहीं, दिस इज इन द डिनोमिनेटर, मतलब मीटर क्यूब अपॉन मतलब ऊपर जाएगा सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम। गुड, तो अब क्या क्या कैंसिल होता है वो देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, डोंट बी इन हरी। किलोग्राम 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 स्क्वायर रूट के बाहर, किलोग्राम स्क्वायर रूट के बाहर। अब ये 2 ये 5 टोटल 7, 7 में से 3 नीचे कैंसिल होगा, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 2, यहाँ पे नीचे सेकेंड स्क्वायर 6 है, ऊपर 2 है, मतलब नीचे 4 बचेगा और आएगा सेकेंड स्क्वायर। मास और ये वेलोसिटी स्क्वायर, मास m by s, वेलोसिटी स्क्वायर mv स्क्वायर, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी ऑप्शन नंबर बी। So this is how you can solve, this is nothing but energy, done। Next question, this question I will give you as assignment, but I will just tell you how to find out dimensions of E square upon 4 pi epsilon 0, a physical quantity of the dimensions of length can be formed out of C, G and E square upon 4 pi epsilon 0। मतलब they are trying to tell you कि अगर मैं C, G और E square by 4 pi epsilon 0 को फंडामेंटल ट्रीट करता हूं, तो I can make length from using this 3 parameters, right? तो अभी आपको C के डायमेंशंस पता है, L1 T minus 1, G के भी पता है, हमने बहुत बार किया, E square by 4 pi epsilon 0 के कैसे फाइंड करने हैं, I'll tell you this and this will go into assignment। So the thing is, I'll also tell you the trick, करना यही है, L is proportional to C raised to X, G raised to Y, G raised to Y and ultimately E square upon 4 pi epsilon 0 raised to Z। लेकिन E square by 4 pi epsilon 0 square, you know force between two charges, if there are 2 electrons, it is 1 upon 4 pi epsilon 0, charge on 1 electron minus E, other is minus E, तो E square upon distance square, coulombic force 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square। तो यहां से आपको मिल जाएगा E square upon 4 pi epsilon 0 equal to F upon r square। तो फोर्स अपॉन r स्क्वायर की फोर्स इनटू r स्क्वायर इनटू r स्क्वायर, तो दिस फोर्स इनटू r स्क्वायर, फोर्स इज m1 l1 t minus 2 and this is r स्क्वायर मतलब l2, तो m1 l3 t minus 2। तो डायमेंशंस अभी आपके पास सबके है, you have to do this as an assignment। So this marks the end of set number 2। Now in the set number 3 we will solve questions from previous NEET exams only। So number 2,
energy E, velocity V and time t are chosen as fundamental quantities. Surface tension का dimensional formula पूछा है आपको. So again you can use two methods to solve this. एक, surface tension is proportional to E raised to x, V raised to y and T raised to z. Another one is the formula of surface tension, which is force per unit length. हमें क्या क्या चाहिए उसको साइड में लिख के रख दो. एनर्जी चाहिए, वेलोसिटी और टाइम, ईवीटी, and in the formula you have none, so you can bring. How can you bring? You remember, do you remember work done? Force into displacement. So force is work done upon displacement, but work is energy. So force is work done upon displacement, मतलब energy upon displacement. पक्का. Work done, which is energy, which is force into displacement. So force is work done upon displacement, मतलब energy upon displacement. Work is energy upon displacement. और L तो वैसे भी displacement है, तो energy upon L square, right? और हमको we don't want, what do you don't want is L. तो E तो आ गया, उसको रख दो पहले. अब L का इलाज करेंगे. हमको क्या चाहिए? VNT. Do you know distance in terms of velocity and time? What is velocity? Distance upon time. So length is VT. So E upon V square T square. तो ये आ गया E1V minus 2T minus 2. है क्या? ऐसा होना चाहिए है. E1V minus 2 T minus 2, option number B. Done. This is from NEET 2015. So I will write this down for you here, that force is energy upon distance, and then, as you know, distance is velocity into time. Next question. Planck's constant h, speed of light c, and gravitational constant g are three fundamental constants. Which of the following combination will give you dimensions of length? अभी एक और ऐसा क्वेश्चन था तो जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया. यहाँ पे भी आपको लेंथ बनाना है यूजिंग सी जी एंड ई स्क्वायर बाय 4π/0. यहाँ पे भी आपको लेंथ बनाना है यूजिंग सी जी एंड एच, राइट? तो अगेन, नाउ व्हाई डिड आई टेक so many questions of this type to tell you different methods. एक मेथड था वो डायमेंशंस लेके, दूसरा था फॉर्मूला से, अब तीसरा लुकिंग एट द ऑप्शंस. अल्टीमेटली क्या चाहिए? लेंथ, मतलब अल्टीमेटली क्या चाहिए? मीटर. दिस इज व्हाट यू वांट. अब अगर आपको याद होगा, अभी होना चाहिए मुझे, आई वांट टू नो व्हाट वाज यूनिट ऑफ जी. जल्दी. अपॉन. वेरी गुड. एंड सी is मीटर पर h. h क्या था? एनर्जी बाय h था जूल सेकेंड. जूल मतलब एनर्जी, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एक गया. तो आपको अल्टीमेटली h मिलेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड. अब एक काम करो, 1 by 1 you have to take and check. इंटरेस्टिंगली यहाँ पे दो जगह पे रूट ऑफ एच जी एंड एच जी है, करेक्ट? तो आप h और g को मल्टीप्लाई करके रख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा. अदरवाइज टेक 1 by 1 रूट ऑफ जी सी. ऑप्शन नंबर ए, अगर मैं लेता हूं रूट ऑफ g इंटू सी h रेज टू 3/2, दिस इज अंडर रूट ऑफ जी मतलब मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम, सी मतलब मीटर पर सेकेंड, और नीचे h रेज टू 3/2, h इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड रेज टू 3/2.
रेज टू 3/2। तो इनका जो रेज टू 3/2 है वो भी कर लेते हैं। दिस इज रेज टू 3/2, दिस इज ऑल्सो रेज टू 3/2, 2 कैंसल, ये भी है रेज टू 3/2 और ये जाएगा ऊपर। ओके, हियर नाउ अल्टीमेटली हाउ टू रिजेक्ट इज समथिंग यू नीड टू लर्न। आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। लेंथ चाहिए मतलब स्क्वायर रूट के अंदर मीटर स्क्वायर ही बचना चाहिए, तब जाके स्क्वायर रूट ऑफ मीटर स्क्वायर विल बी मीटर, मतलब लेंथ। नाउ लुक, कुछ भी कर लो तुम, यहाँ पे किलोग्राम को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर किलोग्राम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज रिजेक्टेड, इट कैन नॉट बी करेक्ट आंसर। तो गया। नंबर 2, रूट ऑफ एच जी अपॉन सी रेज टू 3/2। रूट ऑफ एच जी, न्यूमरेटर में रूट, नीचे नहीं। एच किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जी इज मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर केजी। तो यहां पे कम से कम केजी कैंसिल हुआ। सी रेज टू 3/2, सी रेज टू 3/2 मतलब सी रेज टू 3 रेज टू हाफ, सी रेज टू 3/2, सी रेज टू 3/2 मतलब सी रेज टू 3 का रेज टू हाफ, मतलब यहाँ पे दिस यू कैन राइट सी रेज टू 3 रेज टू हाफ। इसका मतलब नहीं, व्हाट आई एम डूइंग इज समथिंग एल्स। तो पहले समझ लो कि मैंने अगर ऐसा लिख दिया, ऐसा लिखने का मतलब है कि सीधा इसको भी तुम रूट के अंदर लेके आ जाओ। ऊपर रूट है, ये बेचारा अलग से, इसको भी रूट में ले लो क्योंकि ये बोला मेरे पास भी 1/2 है, तो 1/2 को हटाओ, इसको रूट के अंदर ले लो। आ गया मतलब अभी सी क्यूब लिखना आसान हो गया। इट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब, राइट? क्लियर? ये गया, दिस गॉन। मीटर स्क्वायर का रूट मतलब मीटर, मतलब लेंथ, मतलब ऑप्शन नंबर बी खत्म। So this is how you are supposed to do this. Next question. Again, as I told you, such questions should be done orally. तो आपके पास एक physical quantity है A, which is made up of 4 of the variables A, B, C, D, and percentage error in A, B, C, D are 1, 3, 2, 2, and you're supposed to find out percentage error in quantity A. जो ट्रिक मैंने बताई अब वैसा ही सॉल्व करो। कैसा? I told you, what did I tell you is A, B, C, and D. Power is 2, 3, 1 and half. इसका 1, 3, 2, 2 multiply 2, 9, 2 and 9, 11, 3, 13, 1, 14. Option number D. So done, and you're not supposed to write this because this is supposed to be done orally. Next and the last question of this chapter. Quick. Let's make it quick. Dimensions of resistance. कल ही मैंने 11th की बैच में बताया, रेजिस्टेंस मतलब V इक्वल टू IR मतलब R इक्वल टू V बाय I. नाउ यू नो सिर्फ I है फंडामेंटल, V इज नॉट फंडामेंटल, तो आपको V को लिखना पड़ेगा in terms of fundamental quantities. For that you should know electric field is V by L, and from here you have electric field into length as potential or the voltage. So this is E, L and I. L is fundamental, I is fundamental, E is not energy, electric field है यहाँ पे. Do not confuse with energy. This is electric field. So electric field भी फंडामेंटल नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड E is force upon charge. So you can write this as force upon charge Q L by I. Then force is mass into acceleration, mass into acceleration into L. Charge current into time, because current is charge upon time, तो ये current into time और एक I आ गया, right? So how to solve? करंट 2 बार है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो -2 होगा, उसी बाकी जगह पे तो एम्पियर दिख ही नहीं रहा। और वेट अ मिनट,
नन ऑफ दिस भी है, चलो नहीं रुको, रुको जरा, थिंग इज वी स्टिल हैव टू डू दिस, सो डू नॉट मेक नॉइस, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी जाओगे। m मतलब मास रेज टू 1, दिस इज L1 t minus 1, दिस इज L t minus 2 एक्सेलरेशन, नीचे a रेज टू 2 एंड टाइम t रेज टू 1, ऊपर जाएगा -3 a -2 yes, m1 L2 yes, option number B. So that's the end of this chapter.